আচ্ছা, এখান থেকে কটার সময় যাবেন স্যার? হ্যাঁ, এখান থেকে কটার সময় বেরোবে, মানে কোথায় গিয়ে মিট করতে হবে? তুমি শিয়ালদা চাইলে শিয়ালদা 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 থেকে করতে পারো, আর না হলে আহ, ইয়েতে আসলে চলে আসতে পারো। কোথায় কোথায়? কৃষ্ণনগরে? না 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 না, কি বলে শিয়ালদা। তুমি তুমি দমদম থেকে উঠতে পারো অথবা শিয়ালদা চলে আসতে পারো। হ্যাঁ, মানে শিয়ালদা থেকে আপনারা কটায় উঠবেন? আমি আমি তোমাকে এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে, ভিডিওটা। ওকে, ঠিক আছে। হুম, তোমার ওখানে ইয়েতে আচ্ছা, হচ্ছে 8টা 3-এ, 8টা 3 হচ্ছে দমদম জংশন। দমদম জংশন 8টা 3-এ, কি নাম ট্রেনটা? ওটা ইয়ে কি বলে, কৃষ্ণনগর লোকাল। ও আচ্ছা, শিয়ালদায় পৌঁছে গেলে তখন ওটা শিয়ালদা থেকে? শিয়ালদায় পৌঁছলে হচ্ছে 7টা 53-তে ছাড়বে শিয়ালদা থেকে। ও, কৃষ্ণনগর লোকাল। হুম হুম। আর স্যার ব্যাক করার সময় কখন করছেন ওটা? রাত 7:30টায় ওখান থেকে, ওকে। সন্ধ্যা 7টা। ওকে, সো উইল স্টার্ট স্যার রিলেশন উইথ রিয়েলিটি। ইয়েস। স্যার লাস্ট কোয়েশ্চেন স্যার। হুম, স্যার বলছি যে বাস স্ট্যান্ড থেকে ওই যে গ্রাউন্ডটা বলছে ওখানে মানে ডিস্টেন্স আছে, মানে স্যার আপনি চেনেন কি ওটা? খুব বেশি ডিস্টেন্স নয়, তুমি বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছে গেলে বাস স্ট্যান্ড থেকে একটা ওই টোটো বা কিছু ধরে নিলে 10 টাকা ভাড়া। কটায় হচ্ছে স্যার এটা? আচ্ছা স্যার। হুম। হেঁটেও কটায় যাওয়া উঠবেন? যায়, বাস স্ট্যান্ড থেকে হেঁটেও যাওয়া যায়। হ্যাঁ, হেঁটে একটু দূর হবে, ও টোটো ধরে নিলে 10 টাকা। আমি আর বিদ্যুৎ স্যারের কথা শুনে হাঁটবো না স্যার, আমি আজ টোটো ধরবো স্যার। হিমালয় হেঁটে হেঁটে হিমালয় হেঁটে হিমালয়ে তো পাহাড় দেখা যায়, আপনি যেখান দিয়ে হাঁটিয়েছেন ঘাড় পুরো ব্যথা হয়ে গেছে ব্যাক হয়ে। এটা স্যার কোথায় হচ্ছে? কৃষ্ণনগরে? কৃষ্ণনগর লাইব্রেরি মাঠ। ও অলরেডি আনন্দবাজারে বেরিয়ে গেছে তো, ওখানে কোথায় প্রোগ্রাম হচ্ছে। মানে কৃষ্ণনগরে নেবে, ওখান থেকে কিছু ধরতে হবে, টোটো বা অটো? তুমি চলো না আমাদের সঙ্গে, গেলে তো আর তোমাকে ভাবতে হবে না, আমরা যা হ্যাঁ, অত যাবো। ভাবার কিছু নেই, হ্যাঁ যাওয়ার মনস্থির করে ফটাফট বেরিয়ে কোন পড়তে হবে। কম্পার্টমেন্টে? 7:50 শিয়ালদা থেকে ট্রেন, ফটাফট ধরবেন, চলে যাবেন। হ্যাঁ। আর দমদম থেকে উঠলে স্যার কোন কম্পার্টমেন্টে থাকবেন সেটা বলে দেবেন। আচ্ছা, তাই বলে দেবো। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওটা গুনে বলে দেবো, কোনো চিন্তা নেই। আমি এখান থেকে আমি এখান থেকে আমি এখান থেকে যাব, হুম। দমদম থেকে আমি যাব শিয়ালদাই ওদের সাথে। আপনি যদি যেতে চান চলে আসবেন, দমদম স্টেশনে আমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। ঠিক আছে। ঠিক আছে, আচ্ছা, তাহলে তো তুমি কাছের লোক একটা পেয়ে গেলে একই জায়গায়। হ্যাঁ স্যার, ইউনিফর্ম পরতে হবে তো? হ্যাঁ। হ্যাঁ হ্যাঁ, লাস্টেরটা তো, মানে মায়াপুরেরটা তো এখন যেটা? না 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 না, ঋষিকেশেরটা। ঋষিকেশেরটা, আচ্ছা। হুম। আরে ওকে। এখন রাজ্য সরকার নীল সাদা করেছে, নীল সাদা পরে যেতে হবে। Okay, we'll move to our relation with reality. The universe has been existing since eons and it is going to exist for many millions of years. Whereas the perception of this world by individual is varying, the apparently perceptual existence of the universe make us believe that the spiritual being must be eternal. It is, it if it has a beginning and an end, it will be the basics of eternal experience. Brahman or Brahma must be eternal. Then alone can there be justification for our eternal aspiration for perfection. We have a yearning to be perfect. Nobody wishes to be imperfect in any way. There is a longing to become complete in every way, in knowledge, power, experience of happiness. Everybody wants to have
the utmost possible knowledge, the greatest power, and consequently the greatest freedom and happiness. What is the मीन्स ये तो स्वाभाविक है। हम लोग जो भी करना चाहते हैं, हम लोग परफेक्ट होना चाहते हैं इन एवरी फील्ड। कोई भी ऐसे इम्परफेक्ट नहीं होना चाहते हैं। एंड परफेक्ट, हु इज परफेक्ट? द अल्टीमेट परफेक्ट इज ब्रह्म, जो आदि अनंत काल से है और जिसका कुछ शुरुआत भी नहीं है और जिसका कोई अंत भी नहीं है। अगर किसी का शुरुआत है तो उनका अंत है। तो शुरुआत क्या है और अंत क्या है वो देखते हैं, दैट इज इटर्नल, और ब्रह्म ही रहते हैं। क्योंकि जो शुरू है और जो शेष है, खत्म है, एंड है, बोथ आर इटर्नल। तो इसीलिए बोल सकते हैं कि बोथ आर स्टैग्नेंट, और दैट इज ब्रह्म। और वही एकमात्र पूर्ण है, इसलिए हम लोग उससे ही अपना पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति, everyone is wants to be perfect। ऐसा कोई एक व्यक्ति है जो इम्परफेक्ट काम करना चाहते हैं? एनीवन नोस? चमेंदु? नो सर सर, हम्म लेकिन बट सर हम्म परफेक्शन तो डिपेंड्स के मतलब कौन किसको परफेक्ट मानता है, कौन किस लेवल को परफेक्ट मानता है, नहीं सर? नहीं, वो तो है। जैसे इफ यू आर प्रिपेयरिंग ए टी, तो भी वे चाहते हैं कि वो टी बहुत अच्छा से बने। ऐसा नहीं चाहते हैं नहीं कोई इंग्रेडिएंट्स कम हो जाए और खाने में वो मतलब अ, वो खाने का लायक ही ना रहे, ऐसा कोई सोचते ही नहीं है। जैसे सर आपने कहा मैगजीन के बारे में कि उसको और सजाया जा सकता है, लाइक वैसे ही सर वो और परफेक्ट हो सकता है ना सर? वही मैं बोल एकदम। रही हूँ कि लेवल। यस सर। बट वी आर ट्राइंग टू बी परफेक्ट। हम तो परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, या परफेक्ट बनने का कोशिश हम लोग जारी रख सकते हैं, वही जारी हम लोग रखते हैं। इसीलिए एवरीवन वांट्स टू बी परफेक्ट, हर एक फील्ड में, हर एक क्षेत्र में। एंड व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट इटर्नल वर्ल्ड, और जैसे ये पूरा अल्टीमेट क्या है इसके बारे में क्यों सोचते हैं? क्योंकि ये अल्टीमेट जो एंड है, उसको अगर हम लोग जान जाएंगे, सो विल बी सो मतलब परफेक्ट इन ऑल द एस्पेक्ट। तो इसीलिए इम्परफेक्ट हम लोग रहना ही नहीं चाहते हैं, हम लोग परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। दैट इज सर द, परफेक्ट मीन्स कर्मेशु कौशलम। हाँ वो तो है, दैट इज ए प्रोसेस। मतलब हम्म, परफेक्ट होने का एक प्रोसेस है कर्मेशु कौशल, बट वो परफेक्ट होना हम लोग चाहते हैं। और इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि दैट इज द रिलेशन विद द अल्टीमेट रियलिटी, और रियलिटी, और जो सच है, सत्य के साथ हमारा जो संबंध है वही है। वी वांट टू एग्जिस्ट फॉर एवर, वी वांट्स टू डाई, देयर इज सर ए सर डिजायर। हु वांट्स टू डाई वन सेकंड? हाँ, हु वांट्स टू डाई? यस, who wants to die? There is desire in everyone to live forever, eternally. All have a dart of death. One wants to be most intelligent being, filled with cosmic consciousness, and wants to be fully free, unrestricted by things of this world. We want ultimate bliss. We have an aspiration of Satchidananda. We want to have an eternal experience of existence, absolute, an eternal experience, an absolute knowledge, absolute bliss, and absolute power. We want everything complete and infinite. And according to that analysis that we have made, infinite bliss or infinite knowledge would be impossible unless we intimately relate ourselves with the spiritual being, with the infinite. In other words, we must become the infinite। मतलब हम लोग कुछ लिमिट में नहीं रहना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि सारा जो साधन हो, सारा जितना भी बुद्धि हो, ज्ञान हो, सभी मुझे प्राप्त हो। तो वो एकमात्र है, और वो है सच्चिदानंद भावधारा और सच्चिदानंद स्थिति।
और वही उसी को हम लोग प्राप्त करने की कोशिश करते हैं ऑल द टाइम इन डिफरेंट वे। जैसे अभी न्यू ईयर गया या 25th, राधे कल के दैट इज Sir, न्यू। absolute knowledge, absolute bliss, absolute power, इसका मतलब क्या है सब पूर्ण? मतलब जैसे इफ यू आर वन इफ यू बिकेम ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आप क्या चाहोगे? जो मैं बोलूंगा वही हो। जैसे इंडिया, जैसे ऑल द टाइम यू कैन सी द, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट के साथ ऑलवेज जो कोर्ट होता है उसका एक विवाद या एक बहस ऑलवेज जारी रहता है, कॉन्फ्लिक्ट जारी रहता है। कोर्ट इज सेइंग कि वी आर द बेस्ट, व्हाटएवर विल से दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। जो लोकसभा है या तो जो प्रधानमंत्री है, दे आर सेइंग नो, व्हाटएवर वी आर थिंकिंग दैट शुड बी अल्टीमेट। बिकॉज एक्चुअली कोर्ट इज इनकम्प्लीट। नहीं, ये नहीं बोल कोर्ट सकते। कोर्ट इज इनकम्प्लीट इसलिए क्योंकि कोर्ट में सब एविडेंस मांगता है, एविडेंस सही हो गलत हो वो भी चलेगा, हाँ, इसीलिए वो इनकम्प्लीट है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो कोर्ट भी इनकम्प्लीट नहीं है, इसीलिए तो सभी लोग परफेक्ट होना चाहते हैं। जो पॉलिटिशियंस है दे आर सेइंग नहीं, हम लोग जनादेश से आए हैं, मतलब पीपल हैव सेंट अस टू दिस प्लेस, सो व्हाटएवर वी आर थिंकिंग दैट इज राइट। कोर्ट बोल रहा है नहीं, आप किसी के सहारे आप यहाँ पे आए हैं, ठीक है, लेकिन उन लोगों के ऊपर अगर इनजस्टिस होगा तो विल नॉट बी टॉलरेट। इसीलिए ये कॉन्फ्लिक्ट है, नथिंग एल्स। तो ऐसे ही हर एक व्यक्ति किसी को अगर बोलते हैं अच्छा ठीक है, आप के पास पैसा रहेगा लेकिन आपके पास ना बुद्धि रहेगा ना कुछ रहेगा, नथिंग, देन वी डोंट वांट दैट मनी। अगर मेरे पास बुद्धि है लेकिन पैसा नहीं है, तो भी लोग भी ऐसा नहीं चाहते हैं। कोई चाहते हैं कि आपके पास जितना सारा बुद्धि हो रह जाएगा लेकिन आपके पास पैसा नहीं होगा। सोमेंदु, डू यू नीड दैट थिंग्स? नहीं, वो हो नहीं No, सकता। sir. हाँ, no, sir. बैलेंस। दोनों ही चाहता है, हाँ बुद्धि भी हाँ, चाहता है, दोनों पैसा ही। भी चाहता है, बाकी संपत्ति भी चाहता है। हाँ, यही तो अल्टीमेट है, यही यही हमारा मकसद है। यही मकसद है, यही अल्टीमेट उद्देश्य है। तो इसीलिए दैट इज वो इम्परफेक्ट से परफेक्ट होने का चाह, जो चाहत है हम लोगों के अंदर, और ये सभी के अंदर में है। एंड हम ही अल्टीमेट रहें और कोई ना, मतलब कोई मेरा रुकावट क्रिएट ना करे, इस सिचुएशन हम लोग सभी चाहते हैं कि ओके, आई विल बी द ओनली द डोमिनेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। ये सभी चाहते हैं। as like Napoleon, I am the king all over the world. हाँ, नेपोलियन ऐसे बहुत लोग थे। देन मुसोलिनी, मुसोलिनी, ये तो अभी नया है, इसके पहले भी था म्यूनिक। ये इसके पहले भारतीय हार राजा ने ऐसे ही था। नहीं, भारत का जो राजा थे, जो चक्रवर्ती सम्राट बनते थे, वो तो वही चाहते थे कि हम ही श्रेष्ठ है और बाकी सभी मेरा मेरा दुनिया का, मैं सबसे बड़ा राजा हूं और राजा दुनिया ही मेरा है। एकदम, दैट इज। अभी भी ऐसे ही हो रहा है, अभी भी ऐसे ही हो रहा है। अभी भी ये ऑलवेज ऐसे ही चलेगा। और चलता ही रहेगा। एक एक- एक बच्चे भी जब छोटा था, हम्म, बात नहीं बोल सकते, फिर भी वो राजा की तरह ही सुलूक करते हैं अपने को, जो एकदम, मैं ही हूँ सही। एकदम, आई एम द ओनली राइट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। सो वही, to know the infinite is to become the infinite, and we cannot know it through the senses. For the moment we look at it through the senses, it would appear like the world. After all that, all what is this world? This world is itself is God. God is not somewhere outside the world, but he is not seen, not recognized. He is recognized in wrong way.
we think he is in the body, he is the matter, he is space, he is time, he is gross world. No, this is not correct perception. Human perception does not correspond to reality. Reality consists in the experience of chit, knowledge, concentrated. This is the only thing that is eternal. And when it is objectified and looked at through the mind and the senses, it becomes the physical universe. So the purpose of yoga is to withdraw the mind from object perception and center in it in chit. It is the resting of seer in his own self. Now, in this world, the consciousness is in a state of tension. It is moving outside in search of pleasure. It has to be brought back from this fruitless quest and made to rest in itself. Only when it rests in itself, there is experience of pleasure. Pleasure is not the result of contact of a person with the object. It is result of cessation of desire. As long as a desire object is not possessed, there is unrest. But when the desire is quenched, there is happiness. Happiness not come from object. It has come from the extension of particular form of mind which was moving outside in search of peace. Therefore, bliss is in the heart of consciousness. It is everywhere because without it, no perception is possible. जैसे इस पृथ्वी में जो भी कुछ हम लोग महसूस करना चाहते हैं, हम लोग महसूस करना चाहते हैं हमारा इंद्रिय के द्वारा, जो कंप्लीटली रॉन्ग है। क्योंकि भगवान कहाँ पे है? यहाँ पे जैसे बोला गया है कि वेयर ही इज, वो हर एक जगह पे है। जब हम लोग बोलते हैं कि सच्चिदानंद, सच्चिद आनंद हर एक अणु एवं परमाणु में आनंद छुपा हुआ है, सो मीन्स एवरीवेयर ही इज, everywhere he is, not only in one place. ठीक है? जब हम लोग देखते हैं कि अच्छा वो हर एक जगह पे है, तभी हम लोग सही से आनंद ले पाएंगे, अदरवाइज नो। तभी कोई एक व्यक्ति वो आनंदित होंगे सबसे। Am I right? जब तक हम कुछ ना देखे हम्म, तब तब उस समय तक हम लोग को क्या है, उसका क्यूरियोसिटी रह जाएगा, उसका देखने का जो इरादा है उसका बुलंद करने के लिए हम लोगों को और भी आगे जाना, और भी आगे जाना, क्या है ये देखने का एक आकांक्षा रहेगा। आकांक्षा रहने से क्या है, वो मिलने के लिए तरसता रहूंगा। लेकिन जब मिल जाएगा उसके बाद क्या है, वो एक जैसा लंबा लाइन जैसा हो जाएगा, मतलब मिल गया उसके बाद जैसा सुकून जैसा मिलेगा, उसके आगे नहीं कुछ नहीं मिलने वाला। एकदम। लेकिन सर हम्म, वो कोई भी चीज अगर जिसका क्यूरियोसिटी रहता है वो मिल गया, देन तो अनदर किसी के ऊपर और भी क्यूरियोसिटी बढ़ जाता है ना। मतलब वो मिल गया देन बाकी दूसरे किसी के ऊपर क्यूरियोसिटी बढ़ जाता है। हाँ, इसीलिए बिकॉज वी आर विलिंग टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग विद दिस इंद्रियास। ठीक है? और हम लोग जो भी पंच इंद्रिय है, इंद्रिय के द्वारा इसको महसूस करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम है। जैसे तो हम लोग इसका तो सोचते हैं कोई भगवान, अंत नहीं होता है ना सर, मतलब एक के इसीलिए बाद ये तो आते ही जाता है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है ना कि जो आउटसाइड जो भी हम लोग सर्च करते हैं दैट इज प्लेजर,
और वो प्लेजर रिलेटेड विथ इंद्रियस। और जब ये बाहर ये प्लेजर हम ढूंढने के लिए जाते हैं तो तब वो डिजायर तैयार होते हैं, और डिजायर को हम लोग अगर जीवन से हटाते हैं तो ही अल्टीमेट आनंद में रह पाएंगे, अदरवाइज नॉट। मतलब हमारा इच्छा शक्ति जो है उसी को हमारा जो एक खुद जो भगवान या सच्चिदानंद स्वरूप को देखने का मकसद है उसी में लीन कर दिया जाए, आगे ना बढ़ाया जाए, तो हमको सच्चिदानंद मिलेगा, नहीं तो एकदम मिलने वाला नहीं। एकदम, तभी हम लोग एक आनंदमय स्थिति में रह सकते हैं, अदरवाइज नॉट। लेकिन ये कैसे होगा सर? जैसे जैसे सर आपसे ही लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 किया, तो एक एक्सपेक्टेशन था ना कि लेवल 2 होने के बाद लेवल 3 करना है, लेवल 3 हो गया नहीं, अब लेवल 4 करना है, तो ये तो कम यही नहीं हो सकता है ना सर? यही मतलब यही तो इंद्रिय के लिए है, यही जो हम लोग नहीं नहीं सोचते हैं नहीं, इसी के लिए। देखो देखो देखो, ये जो पढ़ाई होते हैं, जो एजुकेशन होते हैं, दैट इज, इसके द्वारा ये प्लेजर नहीं है, दिस इज नॉलेज। दैट इज वो यर्निंग फॉर फ्रीडम, मुमुक्षुत्व है ये, दिस इज मुमुक्षुत्व, दिस इज नॉट ए डिजायर। डिजायर क्या है? जो इंद्रिय के साथ हम लोग जोड़ सकते हैं, जैसे यू कैन से, जैसे किसी का एक साइकिल था, फिर मोटरसाइकिल हुआ, फिर फोर व्हीलर हुआ, फिर फोर व्हीलर से नहीं ऑडी या मर्सिडीज बेंज चाहिए, ठीक है, फिर फेरारी चाहिए, तो दैट इज डिजायर। ओके। हम देन सोचते सर हैं मोबाइल फोन भी जैसे हाँ, पहले वो पुराना जमाने का, अभी एकदम स्क्रीन टच देन एप्पलो, हाँ ये हो सकता एकदम, छोटा वो बटन वाला, फिर वो बटन गया, फिर आया टच स्क्रीन, अभी है। ये फोन भी जाने वाला है कुछ दिन बाद, हम्म, फिर नया टेक्नोलॉजी अभी ऑलरेडी आ चुका है और फ्यूचर में भी आएगा, जैसे अभी VR, विजुअल रियलिटी। तो हम लोग हाँ फ्यूचर में देखेंगे कि ये एक मोबाइल, गैजेट आ गया है। नहीं ऑलरेडी है, दैट इज इन स्पेक्स, सिर्फ एक चश्मा पहनना है और उसके अंदर में सारा कुछ अवेलेबल है, हम्म, और वो भी HD और फुल डेफिनेशन, ठीक है, हाँ नथिंग एल्स। तो ये दिस इज डिपेंड्स ऑन कि हम लोग ये इंद्रिय के द्वारा ही अगर सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं, सो वो स्टेबल नहीं है। वो स्टेबल नहीं है, वो एक से दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसा हमारा जो भी आग्रह है या डिजायर है वो बढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है, इसी को ही कहते हैं माया। एकदम भगवान जी ने इसको बना के रखा है, जो हम लोग इसको करते रहे, नहीं तो हर हर इंसान ने भगवान की ओर जाएगा तो भगवान का जो मकसद है लीला देखने का, वो नहीं, नहीं, उनका वो मन नहीं भरेगा। एकदम एकदम। सर एक लाइन एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। सेकंड लाइन, सो द पर्पस ऑफ योगा इज टू विथड्रॉ द माइंड फ्रॉम ऑब्जेक्टिव परसेप्शन एंड सेंटर इट इन चित्त। चित्त मीन्स सर चित्त, CHIT, चित्त मीन्स चित्त। नहीं, एक्सपीरियंस ऑफ चित, नहीं चित मीन्स चित्त मीन्स नॉट चित्त, चित मीन्स अनु, और दैट इज वैसे चित्त मीन्स चित्त। नॉट चित मीन्स चित्त नहीं है, ये अनु है, मीन्स दैट इज एटम, इन एवरी एटम वी कैन फील द हैप्पीनेस। अच्छा, नेक्स्ट लाइन सर, इट इज द रेस्टिंग ऑफ द seer in his own self. Now in this world the consciousness is in a state of tension. ऐसा क्यों बोला सर? रेस्टिंग ऑफ द seer in his own self, now in this world consciousness in a state of tension. हाँ, ये क्योंकि हम लोग कुछ भी जो प्राप्त करना चाहते हैं, दैट इज इन टेंशन के द्वारा ही हम लोग उनको चाहते हैं, मतलब वी आर आस्किंग, কনসাসনেস মিন্স সচেতনতা। সচেতনতা এখন টেনশন হয়ে গেছে, এরকম কিছু করে। एकदम नहीं, सचेतन चेतना, कॉन्सियसनेस, नॉट सचेतन होता, दिस इज कॉल्ड चेतना। चेतना मीन्स, चेतना। चेतना मीन्स अवेयरनेस। অ্যাওয়ারনেসটা এখন স্যার টেনশন হয়ে গেছে, এটা বোঝা यस, बिकॉज ऑल द टेंशन इस एस्पेक्ट में टेंशन इसके लिए कहा गया है क्योंकि हम लोग हर वक्त
ये सोचते रहते हैं जो वो उसको मिलना चाहिए, उसके आगे और मिलना चाहिए, उसके हम्म, आगे और मिलना चाहिए। लेकिन टेंशन जो हम लोग जिस हिसाब से सोच रहे हैं, टेंशन का मतलब है दुश्चिंता करना। लेकिन एकदम। इसको क्या है, इसको दुश्चिंता नहीं है, ये आगे की और क्या है, हम्म, उसको आगे और क्या है, इसका इसके बारे में टेंशन को बताया गया। एकदम एकदम। और यहाँ पर सर वासना का प्लेजर, वासना को, डिजायर को त्याग करने का ही प्लेजर मिलता है, यही सब एकदम एकदम। बोले मतलब प्लेजर इज नॉट। जब कोई व्यक्ति सब कुछ छोड़ देंगे तभी वो अल्टीमेट आनंद उनको प्राप्त होगा। मेरा सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, नहीं है। और किसी का इरादा भी नहीं है, किसी का चाहत भी नहीं है, किसी में मैं जहां रहूं, क्या खाऊं क्या ना खाऊं, उसका सोच भी नहीं है। एकदम सिर्फ एक ही में सोच है, जो परमात्मा में लीन हो जाऊं, वही है अल्टीमेट सिस्टम। तो एकदम इसी के लिए वो डिजायरनेस भी चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, वही है आखिरी बात। एकदम। और सर लास्ट लाइन, देयरफॉर ब्लिस इज इन द हार्ट ऑफ कॉन्शसनेस। हम्म। सर यहाँ पर ब्लिस मीन्स आशीर्वाद, मीन भगवान का आशीर्वाद बोल रहा है क्या? नहीं, ब्लिसनेस मीन्स जैसे वो कंप्लीट क्या बोलते हैं, आनंदमय स्थिति। It is everywhere because without it no perception is possible. एकदम और bliss means सर आनंदमय स्थिति। एकदम ब्लिसनेस स्टेट। सर आज इतना ही, लेकिन सर 10:56 एक्चुअली आज सर बहुत सारा आलोचना डिस्कशन हुआ। हाँ, नहीं नहीं नहीं, देख ये सारा चीज इतना जल्दी अगर कोई सोचते भी हैं कि एक दिन में हम लोग कवर करेंगे, कवर तो हो जाएगा, बट दिस इज ए कंप्लीट क्या बोलते हैं, आज का जो grounding। आलोचना है, ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि ये और डीप में चला जाता जाएगा, क्योंकि और भी आगे बढ़ेगा ना। आप कितना भी गहरा, समुंदर कितना गहरी है, उससे ज्यादा गहरा है। एकदम। इसीलिए जैसे सरवानी बोल रहे हैं ना कि लेवल 1 2 3, दिस इज नॉट 1 2 3, दिस इज ऑल अबाउट और वही नॉलेज गेन। नॉलेज गेन। एकदम से। सर ये चैप्टर का आगे फर्स्ट माने ये जो हम लोग जो ये चैप्टर है, आगे चैप्टर का टू नो द इनफाइनाइट इज टू बी बिकम द इनफाइनाइट, वो लाइन एक्चुअली पे क्या है, हम लोग अभी जो आलोचना चल रहा है हमारा, ये थोड़ा ऊपर ऊपर से, आगे जाके ये और भी डीपली करना पड़ेगा। तो क्या है, इसको और भी आपका जो प्रश्न का उत्तर है मिलने लगेगा। एकदम एकदम। नहीं, ऑलरेडी चर्चा तो हो ही रहा है। दिस इज सो डीप, मतलब कोई कोई भी अगर पूछते हैं जैसे ये चित्त मतलब एक चित्त परमाणु या मतलब एक, चित्त बुझा, चित्त मतलब चित्त नहीं। नहीं नहीं, ये चित्त यहाँ पे चित्त कभी भी नहीं। अभी ये चीत के लेकर बात करेंगे ना, हम्म इतना सारे इतना सारे ओए निकलेगा, हम्म। रास्ता निकलेगा ना, आपको और भी अच्छा लगेगा, लगले लगले और भी आगे बढ़ेगा, एकदम शाखा और प्रशाखाएं बढ़ते जाएगा। एकदम तो इसलिए ये ऐसा करते करते आगे बढ़ना है और डीपली जाना है, तो क्या है, धीरे धीरे हम लोगों का पूरा अंदर आ जाएगा। एकदम। अदरवाइज वी कुड नॉट एबल टू। एक एक दिन में पूरा कर सकेंगे तो हो जाएगा, लेकिन काम नहीं होगा, एकदम सिर्फ आलोचना ही रह जाएगा। और सर ये लाइन एक, व्हाट इज दिस वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड इटसेल्फ इज गॉड, गॉड इज नॉट समवेयर आउटसाइड द वर्ल्ड, इसीलिए बट ही इज मतलब नॉट हर एक सीन। परमाणु में भगवान छुपा हुआ है, उसको महसूस करना होगा। और जब वो महसूस कर पाएंगे तब सच्चिदानंद भावधारा तभी रह पाएंगे। ऐसा एक नहीं। दिन हम एक दिन हम लोगों ने आलोचना किए थे ना, जो हमारा घर बने हुए है ईंट और पत्थर से, और नीचे जो खड्डा खोदा हुआ है उसमें पानी है, वो हम्म, भी गीला है। और देखिए दोनों में अंतर क्या है, ये सूखा है, वो गीला है, और हम लोग क्या है, हम लोग चल सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन हर चीज में भगवान है, नहीं तो खड़ा नहीं हो सकता। जैसे हम लोग क्या है, दूर दूर में है, देखिए मैं दमदम में हूँ, और एक दमदम में है, आप टालीगंज में है, आप दक्षिणेश्वर में हो, लेकिन क्या है, हम लोग एक ही जगह खड़ा हुआ है, बैठा हुआ हूँ,
क्योंकि कंप्यूटर के जरिए, लेकिन कंप्यूटर में भी भगवान है, नहीं तो हो नहीं सकता। इसलिए एक हर चीज में भगवान है, उनका शक्ति है, सब जीवित है, कोई ऐसा नहीं है जो जीवित नहीं है। घर भी जीवित है, हमारा लाइट जल रहा है वो भी जीवित है, लेकिन दूसरा वे से रास्ता अलग अलग है। यही कह रहा है इसमें, भगवान अलग अलग सिस्टम में है, यही बात इसको बोल रहा है। एकदम एकदम लेकिन सर हम लोग तो साकार भगवान को पूजा करते हैं, श्री कृष्ण, शिव जी, माँ काली, माँ दुर्गा, तो भगवान को तो मैं एक साकार रूप दिया हम लोग तो। नहीं, हम लोग नहीं दिया, उन ना लोगों ने अल्टीमेट बनाया है, उसी के सहारे हम लोग निराकार में जा सकते हैं। इसीलिए साकार को देखना जरूरी है, नहीं तो जैसे आप सोमेंदु है और शिशिर बाबू विद्युत विद्युत है, लेकिन जब तक इन तीनों का अलग अलग पहचान होकर एक ही बिंदु में नहीं जाएगा, तब तक निराकार आ नहीं सकेगा। एकदम तो जिसमें प्राण नहीं है, जड़ प्रदत्त जो जड़ है, उसमें भी भगवान है। कोई दुनिया में हर चीज जीवित है, लेकिन हम लोग का जो सोच है, जिसके जरिए हम लोग उसे जड़ बनाया है और जिसके जरिए हम लोग इसको जीवित बनाए हैं, तो वो जरिया अलग है, लेकिन हर चीज जीवित है। नहीं तो कोई गुण नहीं रह सकता। आप जैसे केमिकल दवाई खाते हो ना, जैसे मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पेट के अंदर तैयार होता है खाना पचने के लिए, लेकिन बाहर भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है। दोनों का विश्लेषण किया जाए तो उनका जो मोल अणु मिलेगा एक ही मिलेगा, लेकिन आप बाहर का जो एसिड खा लिया करे, पी लिया करे तो जल जाएगा, लेकिन अंदर का जो एसिड है उसी में खाना पचता है। एकदम यही है भगवान का मूल स्वरूप। मतलब सब कुछ देखने का जरिया को चेंज करना होगा। वट एवर वी आर सीइंग, वट एवर वी आर एक्सपीरियंसिंग, एवरीथिंग नीड टू बी चेंज्ड, तब जाके जैसे हम, अल्टीमेटली। और एक उदाहरण भी हो सकता है, जैसे एक अंधा आदमी और हम लोग देख सकता है, दोनों में से अंतर क्या है? हम लोग देख नहीं सकता है, लेकिन अंधा आदमी इतना अच्छी तरह से जाएगा, कोई भूल चूक नहीं होंगे, लेकिन हम लोगों का भूल चूक होता है। एकदम तो दोनों में शक्ति क्या है? अल्टीमेट शक्ति हुई है जो आत्मा है, आत्मा ही हम दोनों को चालना करता है। तो एकदम भगवान हर चीज में है। एकदम मतलब यही है कि आ, हर एक अणु एवं परमाणु उनको समझना है। इसलिए देखना, जो आंख खुला हुआ है, जो हम लोग देखते हैं, हम लोग एक दिन चर्चा कर रहे थे ना कि इज व्हाट इज दिस वर्ल्ड, दिस इज ड्रीमिंग स्टेज। और इनसे नींद खुल जाना या तो ड्रीम से बाहर आ जाना वही रियलिटी है। तो ये क्या, पूरा दुनिया जो एकदम भी चल रहा एग्जैक्ट। है, दैट इज ड्रीमिंग। अच्छा, सो इसमें रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं, फिर उसके बाद एक बात हम बोलते हैं। हाँ।